Reproduction occurs in plant into two steps. First is pollination and second is fertilization. Now pollination और fertilization को समझने से पहले थोड़ा सा स्टामिन को और कार्प Good morning to everyone. This is your Vinita ma'am, your science faculty. Today I am going to learn you a special topic, that is a sexual reproduction, especially in plant. So let's start with a very simple definition of sexual reproduction, that is involvement of sex cells or a special type of cells. Again I repeat, involvement of a special type of cells, that is sex cells, in a one process is known as sexual reproduction. Clear? These special type of cells is known as sex cells, and sex cells are divided into two types. First is male sex cells and second is female sex cells. Clear? Sex cells are commonly known as germ cell or gametes. So it is also known as that. हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि सेक्स सेल्स इज नोन एज जर्म सेल्स और गैमेट्स. अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर गैमेट्स, तो आंसर आपका होगा कि स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, दैट इज द गैमेट्स. या फिर आप इसको अदर वर्ड्स में कह सकते हो कि गैमेट्स आर द special type of cells which consist a set of chromosome, a single set of chromosome, that is haploid cell. Clear? मैं थोड़ा सा यहाँ आपको डेफिनेशन दे देती हूँ जिससे आपको बातें और क्लियर हो जाएंगी. पहले मैंने बोला इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ reproductive cell is known as sexual reproduction. And these special kind of cells is also known as sex cells. Sex cells, which is divided into two types. First is male and second is female. And this sex cell is commonly known as gametes. Clear? Now question is that what are gametes? Then your answer is gametes are a haploid cell which contains a single set of chromosome. Clear? So अब हम कह सकते हैं कि gametes is also known as sex cells और sex cell also known as germ cell. Now अब टॉपिक है आपका कि sexual reproduction स्पेशली प्लांट में होता कैसे है. In which plant it will be happen? So answer is in angiospermic plant it will be happen. Angiospermic plant वो स्पेशल काइंड्स के प्लांट है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. अब ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या है, तो दैट इज द सच टाइप ऑफ प्लांट विच कंसिस्ट फ्लावर एंड सीड विथ सीड कोट. अगेन आई रिपीट, such type of plant which consists a flower and seed with seed coat, that is known as angiospermic plant or flowering plant. और ये वही प्लांट है जिसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में हैपन होता है. क्लियर? इसके बाद आते हैं कि प्लांट में ऐसे कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे कौन सा पार्ट होता है जो आपको मेल सेक्स और फीमेल सेक्स को कंटेन करेगा, क्योंकि विदाउट मेल सेक्स और फीमेल सेक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको हैपन नहीं हो सकता है.
ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही डिस्कशन में बता दिया है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल दैट इज सेक्स सेल इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक प्रोसेस ऐसा होगा जहां दो सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट होगा, वो भी दो सेक्स कैसा होगा तो अपोजिट होगा, एक अगर मेल होता है तो दूसरा फीमेल होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट कि प्लांट में कौन सा ऐसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हैपन करता है। सबसे पहले ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आपको होता है, क्लियर। इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट इट विल बी हैपन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्म such type of plant which consist flower, which consist flower and seed with their protective layer, that is seed coat, with their protective layer angiosperm is that type of plant, such type of plant which consists flower and seed with seed coat. यहाँ पर seed coat is the protective layer of seed. Clear? यहाँ तक बातें क्लियर है कि एंजियोस्पर्म वो प्लांट होता है जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपन होता है, कहाँ तो प्लांट में। क्लियर। अब आते हैं कि विच पार्ट, ऐसा कौन सा प्लांट का पार्ट है जो बैरी करता है, जो कैरी करता है आपको क्या तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो फ्लावर इज द पार्ट, फ्लावर इज द पार्ट which contain reproductive organ in plants. Clear? Flower is the part which contains reproductive organ in plant. Clear? फ्लावर भी वो पार्ट है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंटेन करेगा, किसमें तो प्लांट में। अब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और क्या क्या इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पेसिफाई कौन कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। पहले समझ लेते हैं कि फ्लावर जब मैंने बोला तो फ्लावर का फंक्शन कैसे डिसाइड होगा कि कैसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंटर करता है और कैसे ये स्पेसिफाई होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंटेन करने के लिए। ठीक है, तो फ्लावर के बारे में एक चीज समझ जाओ कि फ्लावर वो पार्ट है प्लांट का जो मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन यानी कि मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल को बनाने का काम करता है। क्लियर? तो फंक्शन ऑफ फ्लावर इज मेकिंग द सेल्स ऑफ मेल एंड फीमेल। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब थोड़ा सा फ्लावर के डायग्राम को देखते हैं और उससे समझते हैं कि ये कैसे कंटेन करता है सेक्स ऑर्गन्स को। क्लियर? एक बहुत ही सिंपल सा फ्लावर है हिबिस्कस दैट इज चाइना रोज। ये ऐसा फ्लावर है जो एक साथ मेल ऑर्गन यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों को कंटेन करता है। ये आपका एक सिंपल फ्लावर है। दैट इज द होल्डिंग पार्ट विच इज नोन एज पेडिसल and this part is receptacle. This is sepals, green leaf-like structures, and this one is petals. Clear? Petals, sepals, pedicel, receptacle. Now, अब आते हैं फीमेल पार्ट पर। This one is female part of plant and this one is male part of plant. अब इसका नाम क्या है इसको अभी आप समझते हैं। ये आपका सिंपल डायग्राम हो गया एक फ्लावर का। ठीक है, जो होल्डिंग पार्ट है दैट इज पेडिसल। इसके अपर पार्ट में एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है दैट इज रिसेप्टेकल जो पूरे फ्लावर को अटैच किए रहता है, एक तरह से पकड़े हुए रहता है। ठीक, फिर उसके साइड से थोड़े छोटे छोटे लीफी स्ट्रक्चर्स निकलते हैं दैट इज सेपल्स
और ये जब सेपल्स कलेक्टिवली एक टर्म की तरह इसको यूज करते हैं तो दैट इज नोन एज कैलिक्स, मीन्स ऑल द सेपल्स टेकन टुगेदर इज कॉल्ड कैलिक्स, ऑल द सेपल्स टेकन टुगेदर इज कॉल्ड कैलिक्स। सारे सेपल्स मिलकर एक कैलिक्स बनाएंगे और जब सारे पेटल्स को एक साथ लिया जाएगा दैट इज कोरोला। और एक चीज और समझ जाओ बच्चों, जो कैलिक्स और कोरोला है दिस इज द नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। Again I repeat, calyx and corolla is the non-essential parts of plant. Okay, now अब आते हैं प्लांट्स के एसेंशियल पार्ट पर। ठीक है, प्लांट का एसेंशियल पार्ट वो पार्ट होता है जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है और दैट इज द मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। जो मेल पार्ट होगा दैट इज एंड्रोसियम और जो फीमेल पार्ट होगा दैट इज गायनेसियम। क्लियर? एंड्रोसियम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड गायनेसियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंड्रोसियम का एक यूनिट, द सिंगल यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज नोन एज stamen and this one is the stamen. The single unit of androecium is known as stamen and stamen is the male part of flower of plant. Clear? Stamen made up of two parts. First is anther and second is filament. First is anther and second is filament. Clear? Now gynoecium is the female part and the single unit of gynoecium is known as carpel or pistil. gynoecium फ्लावर का एक फीमेल पार्ट होता है जो कैरी करता है, जिसका एक सिंगल यूनिट कहलाता है कार्पेल या पिस्टिल, यानी कि फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज नोन एज कार्पल एंड पिस्टिल। कार्पल और पिस्टिल, इसको कार्पल कहो या पिस्टिल कहो, इसको दोनों नाम से बुलाते हैं, कार्पल भी पिस्टिल भी। तो दैट इज द, यहाँ पर आंसर क्या मिला? स्टामेन इज द फीमेल पार्ट, स्टामेन इज द मेल पार्ट, सॉरी स्टामेन इज द मेल पार्ट एंड कार्पल और पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट। अब आते हैं, ये स्टामेन में सेक्स सेल जो प्लांट का है, जो मेल सेक्स सेल है वो किस फॉर्म में रहता है? ठीक है, stamen made up by two parts. First is anther and second is filament, and carpel or pistil is made up by three parts. First is stigma, that is upper part of this structure. This is the carpel. Okay, this one is carpel. ये upper part जो दिख रहा है ये that is stigma. ये this one is stigma. Stigma is some sticky part, clear, and this middle part is known as style. और ये जो लोअर में आपको फ्लास्टियम स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज ओवरी, और ये वो वही ओवरी है जिसके अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर एग होता है, जहां पर आपको फर्टिलाइजेशन हैपन होता है। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो आगे के स्टेप में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका एक सिंपल फ्लावर का डायग्राम विथ पेडिसेल, रिसेप्टिकल, सेपल्स, पेटल्स एंड स्टिग्मा एंड स्टामेन्स एंड कार्पल, विथ स्टामेन्स एंड कार्पल्स। ठीक है, एक फ्लावर कैरी करता है स्टामेन और कार्पल, यानी कि मेल ऑर्गन भी और फीमेल ऑर्गन भी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, अब एक चीज बता देती हूँ मैं आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टिंग मेल पार्ट्स एंड फीमेल पार्ट्स, फ्लावर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उसमें एक ही फ्लावर में मेल गैमेट्स भी होते हैं और फीमेल गैमेट्स भी होते हैं, यानी कि मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। यानी कि सच टाइप ऑफ फ्लावर जो कंसिस्ट करेगा विच कंटेन्स मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट ऑफ इन अ वन सिंगल फ्लावर दैट इज नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर, और उस तरह का फ्लावर जो आइदर मेल और फीमेल, या तो मेल या तो फीमेल पार्ट्स को कैरी करेगा दैट इज द यूनिसेक्सुअल। ये किस बेसिस पर है? तो कंटेनिंग द गैमेट्स, कंटेनिंग गैमेट्स बेसिस पर। ठीक है, आपके गैमेट्स को कितना कंटेन करके गैमेट्स को कंटेन कर रहा फ्लावर, उस बेसिस पर फ्लावर को ये डिवाइड किया गया दो पार्ट में, बाइसेक्सुअल और
यूनिसेक्सुअल है। नाउ अब आते हैं कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है बाय विच प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपन इन प्लांट। सो आंसर इज इट अकर्स इन 2 स्टेप्स। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन 2 स्टेप, कहाँ? इन प्लांट। ओके, फर्स्ट स्टेप इज पॉलिनेशन एंड सेकेंड स्टेप इज फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप इज पॉलिनेशन एंड सेकेंड स्टेप इज फर्टिलाइजेशन। Sexual reproduction occurs in plant into 2 steps. First is pollination and second is fertilization. Now pollination और fertilization को समझने से पहले थोड़ा सा स्टामेन को और कार्पेल को और डीप में समझते हैं। स्टामेन इज द पार्ट विच इज मेड अप बाय 2 पार्ट्स, मतलब 2 पार्ट्स और इसमें होते हैं और वो दोनों पार्ट्स मिलकर स्टामेन को एक कंप्लीट पार्ट्स बनाते हैं। ठीक है, ये पार्ट होता है आपको एंथर प्लस फिलामेंट, और यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया है। दिस इज द एंथर एंड दिस वन इज फिलामेंट। दिस इज एंथर एंड दिस वन इज फिलामेंट। एंथर कंसिस्ट, एंथर इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर। पहला थिंग तो ये हुआ कि एंथर जो है वो स्ट्रक्चर में बाइलोब होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है और ये कंटेन करता है एक पॉलन सैक को। ठीक है, एक पॉलन सैक को कंटेन करता है, जो मैं यहाँ रेड से दिखा रही हूँ। दिस इज द पॉलन सैक। एक थैलानुमा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पॉलन सैक थैली होती है और उसमें वो कंसिस्ट करता है पॉलन ग्रेन्स को, और यही पॉलन ग्रेन्स आपको क्या बनाते हैं, क्या तैयारी करते हैं? दैट इज द मेल सेक्स ऑफ प्लांट। प्लांट का जो मेल सेक्स सेल है वो आपको इसी पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स में होता है। ठीक है, एंथर में पोलन सैक होता है और पोलन सैक में पोलन ग्रेन्स होता है, और पोलन ग्रेन्स जर्म सेल दैट इज मेल जर्म सेल को कैरी करता है। ठीक है, और यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि ईच एंड एवरी पोलन ग्रेन्स कंसिस्ट 2 जर्म सेल। एक पोलन ग्रेन्स 2 जर्म सेल को कैरी करता है, जिसमें से एक जर्म सेल होता है आपको जेनरेटिव और दूसरा होता है वेजिटेटिव, और यही दोनों जर्म सेल फर्टिलाइजेशन के टाइम में फ्यूज होता है किसके साथ? तो एग के साथ। ठीक है, दिस इज द पोलन ग्रेन्स जिसके अंदर होता है जर्म सेल, और दिस वन इज पोलन सैक। ये एक सिंपल सा डायग्राम हुआ किसका? तो स्टामेन का। ठीक है, जो आपका मेन पार्ट है किस चीज का? प्लांट का। ये वाला डायग्राम पे आते हैं। ये डायग्राम आपको शो कर रहा है फीमेल गैमेट इन प्लांट। दिस इज द पिस्टिल और कार्पेल। ये अपर पार्ट जो है वो आपको कहलाता है स्टिग्मा। ये थोड़ा स्टिकी होता है। अब स्टिकी क्यों होता है वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। ये स्टिग्मा वाला पार्ट जो है वो स्टिकी पार्ट है। ठीक, और ये मिडिल पार्ट जो है दैट इज स्टाइल। फिर आते हैं इसके लोअर पार्ट में जो कि एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है दैट इज ओवरी, और ये वही ओवरी है जो जिसके अंदर ओव्यूल रहता है। ये है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर आपको रहता है एग। क्लियर? आई थिंक आपको ये बातें क्लियर हो रही होगी कि फीमेल गैमेट कैसे 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। स्टिग्मा, स्टाइल प्लस ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एग, और यहाँ पर आपको फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, जिस जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है वो जगह आपका होता है रिसेप्टिकल, जो मैंने फ्लावर के डायग्राम में क्लियर बताया था। फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज द रिसेप्टिकल, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हैपन होता है। नाउ यहाँ तक बातें क्लियर है। स्टामेन भी क्लियर हो गया आपको और कार्पेल भी क्लियर हो गया। अब आते हैं फर्स्ट प्रोसेस पर, जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला प्रोसेस है प्लांट में, दैट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, एक सिंपल डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, अगेन आई रिपीट, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट इन वन प्लांट, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। एक प्लांट में जब मेल गैमेट का फीमेल गैमेट्स में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, एक प्लांट के पोलन ग्रेन्स का एक मेल गैमेट से दूसरे फीमेल गैमेट में ट्रांसफर होता है, तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है वो आपको पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट, दैट इज द पॉलिनेशन। और ये पॉलिनेशन का जो
प्रोसेस है वो दो तरीके से होता है। मैंने पहले भी बताया आपको कि फ्लावर दो टाइप्स के होते हैं गैमेट्स को कंसिस्ट करने के बेसिस पर, दैट इज यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो उसी तरह से पॉलिनेशन भी है। जब पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफर का टाइम आएगा, ट्रैवल का टाइम आएगा, तो उस वक्त पॉलिनेशन भी दो टाइप का हो जाएगा। एक हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन वो प्रोसेस होगा जहां पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर के एक एंथर से, मतलब एक फ्लावर का एंथर और स्टिग्मा, एक फ्लावर में दोनों हैं, तो उस एक स्टिग्मा का पॉलन ग्रेन एक एंथर का पॉलन ग्रेन दूसरे स्टिग्मा पे जाएगा। ठीक है, मतलब फ्लावर, एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक का ट्रैवलिंग पोलन ग्रेन का, ये आपको होता है सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलन ग्रेन्स का ट्रैवलिंग आपको सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है कि व्हेन पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम gamete anther to stigma, that is in one flower, that is known as self pollination. clear? क्रॉस पॉलिनेशन वो प्रोसेस हो जाएगा जहां ये क्रॉस हो जाएगा, मतलब एक दूसरा प्लांट है, एक दूसरा प्लांट है, और उसका एक का एंथर आपको दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके, एक का एंथर जो पॉलन ग्रेन्स कंसिस्ट करता है वो दूसरे के स्टिग्मा पे जाकर फिक्स हो जाएगा, तो दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है? एक सेम फ्लावर में अगर ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। अगर दूसरे प्लांट में एक प्लांट का एंथर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जा रहा है, मतलब कि एक प्लांट का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जाके फिक्स हो रहा है, दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि बाइसेक्सुअल प्लांट में आपको सेल्फ पॉलिनेशन होता है और क्रॉस पॉलिनेशन यूनिसेक्सुअल प्लांट में होता है, और कहीं कहीं बाइसेक्सुअल में भी ये होता है। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? यहाँ तक बातें क्लियर है कि पॉलिनेशन दो टाइप से हो गए, एक हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। जो सेल्फ पॉलिनेशन है वहाँ एक ही फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे एक उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके चिपक रहा है, या फिर एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ? स्टिग्मा में। ठीक है, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा हो गया क्रॉस पॉलिनेशन, जहाँ एक प्लांट का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जा रहा है। क्लियर? यहाँ बातें क्लियर है? तो सेल्फ पॉलिनेशन में एग्जांपल हो जाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर, और क्रॉस में हो जाएगा यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। किसी किसी में बाइसेक्सुअल में भी ये होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल है बेटा चाइना रोज, दैट इज हिबिस्कस, और यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल है पपाया। एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दे दिया आपको, पपाया, पपीता का जो फ्लावर है, दैट इज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर? यहाँ पर आपको पॉलिनेशन स्टार्ट हो गया थ्रू बाय टू प्रोसेस, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। अब एक बात बताओ, पॉलन ग्रेन्स अपने आप तो जाएगा नहीं, उसको तो हाथ पाँव है नहीं, तो जाहिर सी बात है उसको कोई एक मीडियम और कुछ सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसके थ्रू वो एक एंथर से दूसरे स्टिग्मा पर, एक एंथर से स्टिग्मा पर जाएगा। क्लियर है? तो वो होता है थ्रू द मीडियम्स, थ्रू द सोर्सेज। तो सोर्सेज ऑफ पॉलिनेशन होता है, सोर्सेज ऑफ पॉलिनेशन के बारे में थोड़ा सा जान लें हम लोग कि सोर्सेज ऑफ पॉलिनेशन होता क्या है। सोर्सेज ऑफ पॉलिनेशन में फर्स्ट टर्म आएगा आपको बाय विंड, हवा बहेगी, पॉलन ग्रेन्स डस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाएगा। ठीक है, यानी कि एक एंथर का पॉलन ग्रेन उड़ के दूसरे स्टिग्मा पर जाएगा। क्लियर? तो पहला हो जाएगा बाय विंड। बाय विंड पॉलिनेशन जो हैपन होता है, इट इज नोन एज एनीमोफिली। एनीमोफिली, थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख लीजिए। एनीमोफिली इज दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन वेयर मीडियम इज विंड। ठीक है, जो हवा के थ्रू हो रहा है, दैट इज एनीमोफिली। सेकेंड होता है आपको बाय इंसेक्ट्स। मैंने पहले भी बोला कि स्टिग्मा थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो होता क्या है कि कोई भी इंसेक्ट आके अगर फ्लावर पे बैठता है, क्यों बैठेगा? तो वहाँ का नेक्टर शक करने के लिए, चूसने के लिए, और जब उसके रस को चूसने के लिए बैठेगा तो उसका जो पैर है,
उसका जो लेग है या फिर उसका जो शक्कर है वो दोनों क्या कैरी करेगा, पॉलन ग्रेन को अपने साथ लेके चला जाएगा और जाके वो जब वो स्टिग्मा पे जाके बैठेगा तो क्या होगा, वो स्टिग्मा पे जाकर चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्टिकी होता है। ठीक, पोलन ग्रेन्स भी थोड़ा स्टिकी होता है और स्टिग्मा भी थोड़ा स्टिकी होता है, तो दोनों आपस में इसी तरह से एक दूसरे पे चिपक जाएंगे। क्लियर? तो बाय इंसेक्ट जब पॉलिनेशन होता है दैट इज इन मैमेटोफिली, और एक होता है बाय बर्ड्स। बर्ड्स के थ्रू भी तो होता है, बर्ड्स उड़ के आया उसके भी तो पिक में या फिर लेग्स में चिपक सकते हैं पॉलन ग्रेन्स, तो इसके द्वारा जो होता है दैट इज नोन एज ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली होता तो बहुत टाइप का पॉलिनेशन है बच्चा, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में आपको बस समझना है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, और थोड़ा बहुत सोर्सेज के बारे में समझ लेना है कि कैसे ये पॉलन ग्रेन्स एंथर टू स्टिग्मा ट्रैवल करता है। यहाँ तक बातें क्लियर हैं। ठीक है, अब आते हैं आप आगे की बात पर कि पहला स्टेप तो हो गया, पॉलिनेशन हो गया, पॉलन ग्रेन्स कहाँ पहुँच गए, स्टिग्मा पर पहुँच गए। फिर इसके बाद क्या प्रोसेस होता है कि एक प्लांट में फिर दूसरा प्लांट आने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, ऐसा तो कुछ होता होगा जिससे कैपेसिटी उसकी डेवलप होती है। तो दूसरा स्टेप आता है आपको फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स एंथर टू स्टिग्मा ट्रैवल कर गया, जब वो स्टिग्मा पर पहुँचता है, जहाँ वो स्टिग्मा पर गिरता है तो वहाँ से उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट होना स्टार्ट होते हैं। ओके, और जर्मिनेट होकर एक पॉलन ट्यूब बनाते हैं, और ये पॉलन ट्यूब कहाँ तक जाता है, तो कार्पेल तक जाता है। और पॉलन ग्रेन्स जब मैच्योर होते हैं तो वो ब्रस्ट कर जाते हैं, और उनके अंदर जो दो जर्म सेल कैरी हो रहा था वो दोनों जर्म सेल फ्री होकर पॉलन ट्यूब के रास्ते से होता हुआ आपको कार्पेल तक पहुंच जाता है। कहाँ कार्पेल के कहाँ, तो ओवरी में पहुंच जाता है। कार्पेल में ओवरी में पहुंच जाता है, और ओवरी में इंटर करने के बाद ये एग से जाके कंबाइन हो जाता है, और इस तरह से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। Now let's start with second step of sexual reproduction in plants, that is fertilization. Fertilization, the simple definition of fertilization is fusion of opposite strands. Clear? Fusion of opposite strands is known as fertilization. अब opposite strands क्या है, that is male gamete and female gamete. तो यानी fusion of male gamete and female gametes is known as fertilization. Clear? Fusion of opposite strain, fusion of opposite strain, or fusion of male sex cell, that is gamete, or female sex cell, that is female gamete. प्लांट में क्या होगा, तो प्लांट का मेल सेक्स पोलन ग्रेन्स, फीमेल का सेक्स सेल्स एग। क्लियर? ह्यूमन की भी जब स्टडी करेंगे हम तो ह्यूमन में भी मेल गैमेट का नाम हो जाता है, मेल सेक्स सेल का नाम होता है स्पर्म, और फीमेल का एग ही रहता है, फीमेल का एग रहता है। प्लांट में ये पोलन ग्रेन्स के थ्रू में रहता है। पोलन ग्रेन्स कंसिस्ट करता है किसको, तो फीमेल मेल सेक्स सेल को, दैट इज जर्म सेल। ठीक है, मैंने बताया दो जर्म सेल को कंटेन करता है पोलन ग्रेन्स। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, पोलन ग्रेन्स कंसिस्ट two germ cells, two male germ cells. One is generative and second is vegetative. Clear? फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस हुआ जो स्टिग्मा से आगे बढ़ा और एग तक पहुंचा। ठीक है, जहां आपको अपोजिट स्ट्रेन्स का कॉम्बिनेशन हुआ या फ्यूजन हुआ। स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स पहुंच गया, वहां जाकर वो मैच्योर हुआ और अपने पोलन ग्रेन्स को उसने रिलीज किया, मतलब अपने मेल सेक्स सेल को रिलीज किया। किसके थ्रू, तो जर्मिनेशन के थ्रू। जर्मिनेशन में क्या बनाया, पोलन ट्यूब, और उसके थ्रू जो सेक्स सेल है, जो मेल सेक्स सेल है, वो आपको ओव्यूल तक पहुंचा और वहाँ एग से जाके कंबाइन हो गया। यही आपका पूरा प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, और उसके बाद जब कम्बिनेशन हो जाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज डिप्लॉयड सेल, क्योंकि
मैंने पहले ही बताया आपको कि गैमेट इज अ हैप्लॉइड सेल, तो जो रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होगा दैट इज डिप्लॉइड सेल एंड द नेम इज जाइगोट। ओके, तो पूरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कोई भी रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो न्यू यंग वंस को रिप्रोड्यूस करने के लिए हो रहा है। तो प्लांट्स भी वही कर रहे हैं, अपने जैसा एक और नया बनाने के लिए ये रिप्रोडक्शन करेंगे। और ये रिप्रोडक्शन किस स्टेप्स में होगा? तो 2 स्टेप्स में होगा। पहले वाले स्टेप्स में ट्रैवलिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स होगा, कहाँ से कहाँ? तो मेल गैमेट से फीमेल गैमेट में। उसके बाद दूसरे वाले स्टेप में उसका फ्यूजन होगा किसके साथ? तो मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ। यही पूरी कहानी है, ये पूरा फंडा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का। क्लियर? थोड़ा सा डायग्रामेटिकली चलते हैं और थोड़ा डायग्राम से समझते हैं कि उसमें प्रोसेस होता कैसे है। सो हियर यहाँ पर एक कार्पेल का मैंने डायग्राम बनाया है, सिंपल सा कार्पेल का डायग्राम है। ये वाला पोर्शन स्टिग्मा होता है, मिडिल पार्ट स्टाइल एंड दिस वन इज ओवरी पार्ट। ओवरी कंसिस्ट ओव्यूल, दिस वन इज ओवरी, दिस इज स्टिग्मा, this one is style and flat shaped structure is ovary. Now in this ovary ovule is present and ovule consists eggs in embryo sac। ये एडिशनल नॉलेज है आपके लिए। एग कहाँ रहता है? तो एम्ब्रियो सैक में रहता है। क्लियर? अब आते हैं थोड़ा सा इसके अंदर वाले डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पर मैंने 3 सेल्स यहाँ बनाया है, 3 सेल्स यहाँ बनाया है। ठीक है, ये जो 3 सेल्स है, ये वाला जो पार्ट है दैट इज एग। क्लियर? और इसके साथ ये जो छोटे छोटे बॉडी गार्ड है दैट इज अ सिनर्जिड, इसको कहते हैं सिनर्जिड। दिस वन इज पोलर न्यूक्लियाई। ये जो न्यूक्लियस होता है इसको न्यूक्लियस कहते हैं, मींस पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो 3 पार्ट्स अपर में दिख रहा है बच्चा लोग, ये तीनों पार्ट्स आपको कहलाते हैं एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम इतना क्या बता रही है, क्या बताया जा रही है बच्चों। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया और ये जो अंदर का आपको बताया, ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है प्लांट में, वो फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है। ठीक है, एक बार नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद आपको रिजल्ट के तौर में ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाता है, ओव्यूल जो है वो सीड बन जाता है। ठीक है, और उसके साथ सीड जो है वो सीड कोट को बियर करता है, दैट इज सीड कोट एम्ब्रियो के फॉर्म में सीड कोट को बियर करता है। क्लियर? तो ये जो चल रहा है तो वो एक बार डिवीजन में तो होता नहीं है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है प्लांट के अंदर, एक बार एक पॉलन ग्रेन्स यहाँ से आया दैट इज जेनरेटिव पॉलन ग्रेन्स, और आकर आपके एग से फ्यूज कर गया, कंबाइन कर गया, फिक्स हो गया और क्या बनाया? जाइगोट, दैट इज अ डिप्लॉइड सेल। और जब एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं सिनगैमी प्रोसेस। द टर्म इज सिनगैमी। क्लियर? Syngamy is that type of process where one male gamete and one female gamete fuse together. Clear? यानी जब पोलन ग्रेन्स आपका स्टिग्मा में पहुंच गया तो वहां पर पोलन ट्यूब जर्मिनेट किया और उस पोलन ट्यूब के थ्रू आपको एग में एंटर किया, आपके ओवरी में एंटर किया और एग के पास जाकर बैठ गया। ठीक है, वहां पर 2 जर्म सेल में से एक ही जाता है, पहले एक सेल जाता है और एक से जाके कंबाइन कर देता है। ठीक है, और जाइगोट बना देता है। फिर ये जाइगोट फर्दर डिवीजन करते हैं और डिवाइड होकर अदर सेल्स बनाते हैं, तब जाके आपका जो ओवरी है वो फ्रूट के रूप में बदल जाता है और फ्रूट के साथ सीड आ जाता है और सीड के साथ एक न्यूट्रिटिव टिश्यू और आ जाता है एम्ब्रियो के फॉर्म में, दैट इज अ सीड कोट। क्लियर? तब आपका वो सीड जो है वो अपने एम्ब्रियो के साथ, दैट इज बेबी प्लांट, एम्ब्रियो के साथ डॉर्मेंट स्टेज में बैठा रहता है और जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है वो सीड क्या होता है? बिगिन टू जर्मिनेट, जर्मिनेशन शुरू करता है, उसका ग्रोथ प्रोसेस शुरू होता है और यहाँ जाकर आपका फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। कैसे? तो उस सीड में जर्मिनेट करके एक नया प्लांट दे दिया। तो जो बेसिक
इसका इम्पॉर्टेंस है, जो बेसिक इसका नेसेसिटी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो वहाँ कंप्लीट हो जाता है और इस तरह से प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया एक सिनगेमी प्रोसेस, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन बिटवीन वन मेल गैमेट। इसको आप याद रखिएगा, रखना बच्चा, वन मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट। यानी जब एक मेल गैमेट का दूसरे एक फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन होता है तो यहाँ पर आपको एक डिप्लॉयड सेल बनता है, दैट इज 2n, और ये डिप्लॉयड सेल आपको कहलाता है जाइगोट, जो कि बाद में फर्दर अदर डिवीजन करते हैं और फर्दर अदर डिवीजन करने के बाद ये आपको जाइगोट बदलकर फिर एक न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाते हैं, न्यूट्रिटिव टिश्यू दैट इज एंडोस्पर्म, दैट इज एंडोस्पर्म। क्लियर? और फिर ये न्यूट्रिटिव टिश्यू और ये सिनगेमी, ये दोनों का प्रोडक्ट फिर डिवाइड करता है और ये क्या बनाता है, एक नया प्लांट, दैट इज एक नया प्लांट जनरेट करने वाला सीड बनाता है। ठीक है, सीड। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन अगर इफेक्ट का बात करें तो अब आपका जो ओवरी है वो फ्रूट में बदल गया और जो ओव्यूल है वो सीड में बदल गया। ये पूरा कार्पेल में जो प्रोसेस हुआ वो आपको रिजल्ट के तौर पे क्या दिया, तो ओवरी बिकम फ्रूट विथ सीड, यानी कि ओव्यूल बन गया क्या, सीड। और ये सीड में क्या होगा, तो सीड कोट, दैट इज न्यूट्रिटिव टिश्यू एंडोस्पर्म, जिसको हम लोग अभी 10th स्टैंडर्ड में हम लोग उसको नाम क्या देंगे, एम्ब्रायो, दैट इज बेबी प्लांट ऑफ सीड। सीड के अंदर एक बेबी प्लांट आराम से बैठा रहेगा और जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वो जर्मिनेट होना स्टार्ट होगा और एक सीड ग्रोथ करके आपको क्या बना देगा, नया प्लांट बना देगा। और यहाँ पर आपको एम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा और हमें एक नए प्लांट की प्राप्ति हो जाएगी। ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एक बार क्विक रिवीजन देती हूँ कि मैंने अब तक क्या क्या पढ़ाया आपको। एक बार बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं कि क्या मैंने आज पढ़ाया। पहले मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक सिंपल भाषा में डिफाइन किया, दैट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल दैट इज नोन एज सेक्स सेल्स एंड सेक्स सेल्स आल्सो नोन एज जर्म सेल और gametes, which is divided into two types. First is male sex cells and second is female sex cells. In human, male sex cell known as sperm and female sex cell known as egg. In plant, it will also have sexual reproduction also happen in two process. First is pollination and second is fertilization. हैपन होने से पहले वो किस प्लांट में होता है उसके बारे में मैंने बताया कि वो स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट होता है, फ्लावरिंग प्लांट, जो कि कंसिस्ट करता है फ्लावर को, साथ ही सीड को सीड कोट के साथ कंसिस्ट करता है। और दिस टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज नोन एज एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर? अब उसके बाद मैंने आपको एक फ्लावर का डायग्राम दिया था और उससे फ्लावर के पार्ट्स को थोड़ा बहुत डील किया था। क्यों? क्योंकि फ्लावर कंटेन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। फ्लावर ही वो पार्ट है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंटेन करता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स को आगे बनाता है। तो इस तरह से फंक्शन ऑफ फ्लावर था मेकिंग ऑफ मेल सेक्स सेल्स एंड फीमेल सेक्स सेल्स। क्लियर? उसके बाद मैंने बताया आपको कि क्या मेल सेक्स सेल का नाम है और क्या फीमेल सेक्स सेल का नाम है। तो प्लांट में मेल सेक्स सेल का नाम है स्टामेन और फीमेल सेक्स सेल का नाम है कार्पेल। ठीक है, यहाँ पर स्टामेन जो है वो फिलामेंट और एंथर के साथ बना होता है। एंथर जो होता है वो पोलन सैक रखता है और पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स रखता है। पोलन ग्रेन्स, ईच एंड एवरी पोलन ग्रेन्स कंसिस्ट 2 जर्म सेल्स, एक जनरेटिव होता है और दूसरा वेजिटेटिव होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन के टाइम में इसका काम होता है। ठीक है, फिर दूसरा मैंने आपको बताया कार्पेल, दैट इज द फीमेल सेक्स सेल, फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो कि आपको कंसिस्ट करता है 3 पार्ट्स को, स्टिग्मा, अपर पार्ट्स, मिडिल पार्ट स्टाइल एंड लोअर पार्ट दैट इज फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। ओवरी कंसिस्ट ओव्यूल कंसिस्ट एम्ब्रियो से, जिसके अंदर एग आपका बैठा हुआ रहता है। क्लियर यहाँ तक बातें? फिर हमने पॉलिनेशन प्रोसेस को डिस्कस किया कि व्हाट इज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ
ट्रांसफरिंग पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट, दैट इज एंथर टू स्टिग्मा। मतलब एक एंथर का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाकर जो बैठ जाएगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया, फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। जब हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं तो वहां पर मैंने आपको बताया कि फ्लावर को according to their containing reproductive organs divided into two parts, first is bisexual and second is unisexual। bisexual plants में एक फ्लावर जो होता है कंटेन करेगा मेल भी और फीमेल भी, और यूनिसेक्सुअल वो होता है जो कंटेन करता है या तो मेल या तो फीमेल। ठीक है, फ्लावर के कंसिस्टिंग एबिलिटी के अनुसार आपको पॉलिनेशन भी थोड़ा डिफर करता है, वेरी करता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन वो पार्ट हुआ जहां पर एक सिंगल फ्लावर जिसमें स्टामिन और जहाँ एंथर और स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट होते हैं, वो आपको एक एंथर का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर फिक्स हो जाता है, या फिर अपने ही प्लांट के एक दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर फिक्स हो जाता है। ठीक है, दैट इज द सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा प्रोसेस था क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें एक प्लांट का पॉलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा पे जाकर फिक्स होता था। इसको करने के लिए भी सोर्सेस थे, बाय विंड, बाय बर्ड, बाय इंसेक्ट। उसको भी मैंने तीन नाम वाइज मैंने बताया, टर्म वाइज बताया था आपको। एनिमोफिली दैट इज बाय विंड, इनर्टोफिली दैट इज बाय इंसेक्ट, ऑर्निथोफिली दैट इज बाय बर्ड्स। इसके अलावा बहुत सारे पॉलिनेशन के सोर्सेज होते हैं और पॉलिनेशन के टाइप्स होते हैं, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में आपको इतना ही जानना है। ठीक है, फिर हम लोगों ने फर्दर डिस्कस किया अबाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में हमने बताया कि फ्यूजन ऑफ अपोजिट स्ट्रेन्स दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अपोजिट स्ट्रेन्स मीन्स मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल का फ्यूजन जहां होता है, जिस प्रोसेस में होता है, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। क्यों होगा ये फ्यूजन? तो अपने जैसे ही एक और को पैदा करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो प्लांट भी ये काम करते हैं, अपने जैसा ही एक और यंग वंस लाते हैं, एक और प्लांट लाते हैं, जो किसके थ्रू होता है? पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है। और ये दोनों स्टेप कहाँ होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। उसके बाद मैंने आपको ये डायग्राम बताया, यहाँ पर मैंने बताया आपको कि बीच में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाद यहाँ आपको एग दो बॉडीगार्ड के साथ रहता है। जो बॉडीगार्ड होते हैं उसको सिनर्जिड कहते हैं। जो बीच में है वो एग है, ये है आपको पोलर न्यूक्लियाई, और ये जो 3 पार्ट्स हैं, 3 सेल्स है, दैट इज एंटीपोडल्स। ठीक है, सब में न्यूक्लियस एक एक होता है, सब हैप्लॉइड सेल होता है। ठीक है, अब ये जो एक हैप्लॉइड सेल दूसरे हैप्लॉइड सेल के साथ मिलेगा तो एक डिप्लॉइड सेल बनाएगा, दैट इज जाइगोट, और इस प्रोसेस को कहेंगे सिनगैमी। क्लियर? और इसी सिनगैमी के बाद जब जाइगोट मिल जाएगा तो जाइगोट का फर्दर डिवीजन होगा और ये डिवाइड होकर आपको न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाएंगे। मतलब एक प्लांट का जब आपको फ्रूट बन गया, एक जाइगोट बन गया, एक बेबी आ गया, तो उसको न्यूट्रिशन की भी तो ज़रूरत है, क्योंकि जब बच्चा वुम्ब में रहता है तो उसको न्यूट्रिशन माँ से मिलता है, माँ के प्लेसेंटा से मिलता है। उसी तरह एक प्लांट में भी प्लेसेंटा चाहिए जो उसको न्यूट्रिटिव टिश्यू का काम करे, मतलब जो उसको न्यूट्रिशन देने का काम करे, दैट इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू। और ये न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है आपको एंडोस्पर्म। ठीक है, जो कि एम्ब्रियो के फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब आपको आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया सिनगैमी की प्रोसेस के थ्रू। ये सिनगैमी फिर से आपको दोबारा डिवाइड हुआ तो ये ट्रिपल फ्यूजन किया, फिर डिवाइड हुआ तो ये एक सिंगल फ्यूजन और एक ट्रिपल फ्यूजन, ये दोनों का जब फर्टिलाइजेशन हुआ तब ये डबल फर्टिलाइजेशन कहलाया। ठीक है, ये थोड़ा डिटेल में बड़े ऊपर वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप समझिए कि एक फर्टिलाइजेशन में आपको सिनगैमी हुआ जहाँ एक सेल दूसरे सेल से मिला और एक डबल सेल बना लिया, दैट इज जाइगोट। जाइगोट के बाद आपको ओवरी बदल गया, जाइगोट के डिवीजन के बाद ओवरी आपको बिकम फ्रूट विथ सीड विथ न्यूट्रिटिव टिश्यू, दैट इज एम्ब्रियो। यानी कि ओवरी बन गया आपका फ्रूट और ओव्यूल बन गया सीड। ठीक, अब इसको अगर समझना हो तो एप्पल का एग्जांपल ले लो। एप्पल के अंदर सीड रहता है, तो वो हुआ फ्रूट, दैट इज ओवरी, और बीच वाला हुआ सीड, दैट इज ओव्यूल। क्लियर? और उसको जो न्यूट्रिशन मिलता है दैट इज एम्ब्रियो, जो सीड के अंदर होता है। जब उस सीड को आप बाहर रखोगे तो तब तक वो चुपचाप बैठा रहेगा जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा, और जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, मतलब कि सही पानी, सही हवा, सही उसको गर्मी मिलेगी, तो वो जर्मिनेट होना शुरू होगा और भीतर का बेबी प्लांट जो कि रेडिकल और प्ल्यूम्यूल के साथ
इम्ब्रियो के साथ रहता है, इम्ब्रियो में रहता है, वो आपको जर्मिनेट होना शुरू होगा और धीरे धीरे वो डेवलप होकर एक नया प्लांट बना लेगा और इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट कंप्लीट होगा। ये था आज का टॉपिक आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आई होप आपको बातें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।